ہاں آنٹی، وہ میں نے آریان سے بات کر لی ہے. مجھے جیسے ہی پیسے دیں گے تو میں آپ کو دوں گی، آپ مجھے بابا سے تعویذ لا دیجیے گا. ارے وہ تو میں لا دوں گی، اگر تم نے پہلے ہی کام صحیح کیا ہوتا نا تو دوبارہ جانے کی نوبت نہیں آتی. کہ ایک ہی تعویذ سے کام بن جائے گا؟ تمہیں کیا پتا؟ آنٹی آپ کو واقعی لگتا ہے کہ بابا کے عمل میں اتنی طاقت ہے؟ ارے ہاں مہک، بابا نے کتنے لوگوں کے بگڑے ہوئے کام سنوار دیے. بس اللہ کرے میرا کام بھی بن جائے. تم بالکل پریشان مت ہو، 100% تمہارا کام ہوگا. میری گود بھر جائے اور ہاں میری بچی. اور مجھے کچھ نہیں چاہیے آنٹی. آنٹی آپ کتنی اچھی ہیں، ہم میری کتنی مدد کر رہی ہیں. تھینک یو. میری تو اللہ سے دعا ہے آمین. کہ تمہاری گود جلد سے جلد بھر جائے. بس میری بچی، آمین. مجھے نا دکھی لوگوں کی خدمت کر کے نا جو سکون ملتا ہے نا، میں تمہیں بتا نہیں سکتی. اب کے کام بالکل صحیح سے کرنا. جی آنٹی. چلو اب جلدی سے جاؤ، کوئی ہمیں دیکھ نہ لے. اب زاویار کی طبیعت کیسی ہے؟ بہتر ہے پہلے سے. تھینک یو سو مچ راہم، تم وقت پہ ہمیں ہاسپٹل لے گئے. دوست ہی دوست کے کام آتا ہے نا. کتنی خوش نصیب ہوں میں کہ مجھے تم جیسا دوست ملا. بات ساری یہ ہے کہ تم خود اچھی انسان ہو، اس لیے تمہیں اچھے لوگ ہی ملتے ہیں. مجھے اچھے لوگ نہیں ملتے، کاش مل جاتے تو میری زندگی ایسی نہیں ہوتی. ایمان، یہ جو زندگی ہے نا، یہ تمہاری ہے، اسے تم نے اپنے حساب سے جینا ہے. اور ویسے بھی تم ہو کتنی انٹیلیجنٹ، مجھے یقین ہے کہ تم کچھ نہ کچھ کر ہی جاؤ گی. باتیں اچھی کر لیتے ہو تم، موٹیویشنل. ہاں، تم سے بات کرنے کے بعد ایک الگ سی انرجی محسوس ہوتی. وہ تو ہے. اچھا، مسکان کے بارے میں گھر پہ بات کی؟ بالکل بالکل، میں نے اپنا فیصلہ سنا دیا. میں نے انہیں بتا دیا ہے کہ اگر میں شادی کروں گا تو صرف مسکان سے. مہک بھابی کیا کہتی؟ مان جائیں گی، تم فکر نہ کرو. لگی دکان تو بھائی حامد ٹھیک ہے، لیکن آپ نے شٹر کھول کر نہیں دکھایا. ارے آصف بھائی، اندازہ ہو جاتا نا کتنی بڑی دکان ہے. جس کام کے لیے آپ دکان لے رہے ہیں نا، اس کام کے لیے یہ دکان بیسٹ ہے. کرایہ کتنا ہے بھائی؟ کرایہ تو بہت مناسب ہے، 25,000. 6 مہینے کا ایڈوانس دینا ہوگا. بھائی یہ تو بہت زیادہ ہو جائے گا. کرایہ تو ٹھیک ہے میں کر لوں گا، 3 مہینے کا ایڈوانس بھی کر دوں گا، لیکن 6 مہینے ابھی تو کاروبار نے اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا ہے بھائی، تھوڑا ٹائم تو لگے گا نا. آصف بھائی ایسا ہے کہ میں دکان مالک سے پوچھ کر آپ کو فون کروں گا، اگر وہ مان جاتا ہے تو ٹھیک ہے. بہت اچھا آدمی ہے وہ، ویسے مجھے لگتا ہے کہ وہ مان جائے گا. آپ کوشش کر کے گزارش کر لیجئے گا. گھر جیسی بات ہے. ارے یار آصف بھائی، میں کہہ رہا ہوں نا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں سنبھال لوں گا. شکریہ آپ کا. اور تم کیا اتنی گہری سوچ میں گم ہو؟ کچھ نہیں امی، میں بس بہت بور ہو رہی تھی. بس جلدی سے میرا رزلٹ آ جائے، پھر دیکھتے ہیں کہ آگے کیا کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ کیا مطلب؟
अम्मी मैं सोच रही थी कि मैं भी ईमान आप ही की तरफ जॉब कर लूं, इससे घर के हालात कितने बेहतर हो जाएंगे। अब कब तक अब्बा इसी तरह अकेले हमारा यूं खर्चा उठाते रहेंगे। बेटा वो तो बाप होने का फर्ज अदा कर रहे हैं ना। लेकिन अम्मी ठीक है, लेकिन औलाद के भी तो कुछ फर्ज होते हैं ना, तो इसमें क्या बुराई है। अब मैं चाहती हूँ कि मैं अब्बू का बाजू बनूं। देखो बुराई तो कोई नहीं है, लेकिन मैं और तुम्हारे अब्बू चाहते हैं कि तुम अपने घर की हो जाओ, और ईमान भी क्या? मैं तो चाहती हूँ कि क्या मतलब है अम्मी? ईमान हालात से समझौता कर ले और अपनी सौतन को बर्दाश्त कर ले। मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि ईमान आप ही शाबीर भाई को माफ कर दे? अब आसिफ साहब एम्बर की मदद से अपना नया कारोबार शुरू करेंगे। वो घर से ही खाना बनवा कर ले जाएंगे और वहां जाकर सब लोगों को वही घर का खाना खिलाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता आसिफ साहब के हाथ के खाने की मांग इस कदर बढ़ जाएगी कि अंबर को अपनी मदद के लिए चंद लोग रखने पड़ेंगे। एक दिन आसिफ साहब अंबर से पूछेंगे कि कहीं वो ये सब करते करते थक तो नहीं जाती। अंबर मुस्कुरा कर जवाब देगी कि वो हमेशा से आसिफ साहिब का साथ देती आई है, तो अब भी उन्हीं का साथ देगी। वो अपने शोहर को कभी किसी का मोहताज नहीं होने देगी। उसी तरह आसिफ साहब के सारे बच्चे भी दोबारा इनके करीब आ जाएंगे और अपने बाप का सहारा बनकर उनके आगे पीछे रहने लगेंगे। आसिफ साहब के कारोबार ने जब से तरक्की की राह पकड़ी, घर के हालात में भी एक नई ताजगी पैदा हो गई। अंबर सुबह सवेरे उठकर खाना तैयार करने में लग जाती। वो बड़े खुलूस, मोहब्बत और मेहनत से हर डिश को ऐसे बनाती जैसे वो सिर्फ कारोबार के लिए नहीं बल्कि अपने शोहर की कामयाबी के लिए बना रही हो। आसिफ साहब भी हर वक्त उस फिक्र में रहते कि कहीं अंबर पर ज्यादा बोझ तो नहीं पड़ रहा, मगर अंबर की पेशानी पर कभी थकावट की लकीरें नजर न आती। वो हर दिन एक नए अज़्म के साथ खड़ी होती, यूं जैसे उसकी ताकत उसके शौहर की मजबूती से जड़ी हो। चंद ही हफ्तों में आसिफ साहब के खाने का जायका इलाके भर में मशहूर हो गया। लोग सुबह ही ऑर्डर बुक करवाने लगे और शाम तक तमाम खाना खत्म हो जाता। इस बढ़ती हुई शहरत ने आसिफ साहब के अंदर एक नया इत्मीनान पैदा कर दिया। जो शख्स कभी खुद को नाकाम और दूसरों के सहारे का मोहताज समझता था, आज वो पैरों पर खड़ा था और अपने बच्चों के लिए फख्र का बायस बन रहा था। इधर अंबर ने भी महसूस किया कि काम इतना बढ़ गया है कि अब वो अकेले नहीं संभाल सकती। चनांचा उसने 2 औरतों को मदद के लिए रख लिया। घर में अब एक खुशगवार मसरूफियत का माहौल बस गया था। एक दिन खाना पैक करते हुए आसिफ साहिब ने नरमी से पूछा, अंबर कहीं तुम ये सब कुछ करते करते थक तो नहीं जाती? मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम इतनी परेशान हो। अंबर ने रख कर उनकी तरफ देखा। उसकी आंखों में वही पुराने जमानों वाली वफादारी चमक रही थी। आसिफ, मैंने जिंदगी भर आपका साथ दिया है और अल्लाह की कसम आपको कभी गिरने नहीं दूंगी। आप जब कमजोर थे मैंने आपका हाथ थामा था। आज जब आप मजबूत हो रहे हैं तो मैं कैसे पीछे हट सकती हूँ। उसके लहजे में मोहब्बत, इत्मीनान और वक़ार की एक अजीब सी गहराई थी। आसिफ साहब ये सुनकर खामोश हो गए, मगर उनके दिल में अंबर के लिए इज्जत और बढ़ गई। वो जानते थे कि अंबर ही वो सितून है जिसने उस घर को हर मुश्किल में सहारा दिया है। वक्त गुजरता गया और जैसे जैसे कारोबार में बरकत होती गई, घर के हालात भी बेहतर होते गए। वो बच्चे जो पहले अपने बाप से दूर रहते थे अब दोबारा उनके करीब आने लगे। वे बार बार आसिफ साहब के पास बैठते, इनसे बातें करते, इनके साथ वक्त गुजारते। बच्चे अपने बाप की मेहनत देखकर इन पर फख्र महसूस करने लगे। यूं लगता था जैसे बरसों के फासले आहिस्ता आहिस्ता मुट रहे हों, जैसे घर में मोहब्बत, बरकत और खुशी ने दोबारा कदम रख दिया हो। अंबर का सब्र, आसिफ साहब की मेहनत और दोनों की सच्चाई ने वो कारनामा कर दिखाया जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। आसिफ साहब के कारोबार की बढ़ती हुई कामयाबी ने न सिर्फ घर की फजा बदल दी थी बल्कि उनके रवैये में भी एक गैर महसूस मगर खूबसूरत तब्दीली पैदा कर दी थी। जो आदमी कभी मायूसी में गुम रहता था अब हर सुबह नए जज्बे और नई उम्मीद के साथ घर से
निकलता है। उसकी आंखों में एतमाद झलकता, चेहरे पर सुकून और दिल में ये एहसास जाग चुका था कि जिंदगी ने उसे एक दूसरा मौका दिया है और इस मौके को उसने दाया नहीं करना। उसके इस बदलते हुए रवैये ने घर के हर फर्द को मुतासिर किया, खास तौर पर एम्बर को, जिसने हमेशा उसका साथ निभाया था। दूसरी तरफ एम्बर भी उस सारे सफर में पहले से ज्यादा मजबूत हो चुकी थी। वो जानती थी कि उसने न सिर्फ आसिफ साहब बल्कि पूरे घर को दोबारा संभालने की जिम्मेदारी उठाई है। इसलिए उसने अपने दिन को इस तरह तरतीब दिया कि घर के काम, बच्चों की जरूरियात और कारोबार सब एक तरतीब में चलते रहें। सुबह से दोपहर तक वो किचन में मसरूफ होती, शाम तक ऑर्डर्स की तैयारी में लगी रहती, मगर इस सारे मसरूफियत के बावजूद उसके चेहरे पर कभी शिकायत की परछाएं तक नहीं दिखाई देती थी। उसका यकीन था कि अगर नीयत साफ हो और मेहनत सच्ची हो तो अल्लाह हर रास्ता आसान कर देता है। इधर आसिफ साहब के बच्चों के दिलों में भी अपने वालिद के लिए मोहब्बत और एहतराम दोबारा जन्म लेने लगा था। वो देख रहे थे कि उनके बाप ने किस तरह खुद को बदल डाला है। अब वो उनके करीब बैठते, इनसे मशूरे लेते, इनकी बातें तवज्जो से सुनते। आसिफ साहब भी बच्चों की उन बदलती हुई कैफियत को महसूस करते हुए अक्सर सोच में पड़ जाते कि काश ये सब पहले समझ आ जाता तो जिंदगी में इतने फासले ही न बनते। मगर फिर वो ये सोच कर शुक्र अदा करते कि देर से सही मगर घर वापस मोहब्बत लौट आई है। एक शाम जब तमाम ऑर्डर्स मुकम्मल हो गए, एम्बर थकी हुई कुर्सी पर बैठ गई। आसिफ साहिब ने उसके करीब आकर नरमी से पूछा, क्या सोच रही हो? एम्बर ने आहिस्ता से जवाब दिया, ये कि अल्लाह ने हमें दोबारा मौका दिया है। मैं चाहती हूं कि अब हम एक दूसरे का हाथ कभी न छोड़ें। आसिफ साहब ने उसकी बात पर मुस्कुराकर कहा, अंबर, अगर तुम न होते तो शायद मैं कभी खड़ा ही ना हो पाता। तुमने मुझे हौसला दिया, मुझे थामा। अब मेरी बारी है कि मैं तुम्हें भी वो जिंदगी दो जिसकी तुम हकदार हो। एम्बर की आंखों में आंसू आ गए, मगर वो कोई लफ्ज न बोली। इन आंसुओं में शक्र भी था, सुकून भी, मोहब्बत भी और एक यकीन भी कि उनकी मेहनत रंग ला चुकी है। अब घर में हर रोज एक नई मसरूफियत, एक नई खुशी और एक नया हौसला होता। बच्चे वो एक दूसरे के साथ बैठकर मुस्तकबल की बातें करते। एम्बर और आसिफ साहिब कारोबार को मजीद बढ़ाने के मंसूबे बनाते और यूं ये घर जो कभी मुश्किलात में घरा हुआ था अब खुशियों की रोशनी से जगमगाने लगा था। आहिस्ता आहिस्ता घर की रौनक पहले से कहीं ज्यादा बढ़ने लगी। अब हर सुबह घर में चूल्हे की खुशबू, बच्चों की सरगोशियां और अंबर की मसरूफ कदमों की चाप से एक ऐसी जिंदगी महसूस होती जिसमें उम्मीद भी थी और सुकून भी। एम्बर जब किचन में खड़ी होती तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी स्किन दिखाई देती, गोया वो जानती हो कि उसके हाथों से बने वाला ये खाना सिर्फ पेट नहीं भर रहा बल्कि उसके शोहर की इज्जत, उसके घर की बुनियाद और उसकी अपनी मेहनत को भी मजबूत कर रहा है। वो हर डिश को पूरे खलूस से तैयार करती, जैसे हर नवाले में अपने खानदान की खुशियों की जमानत रख रही हो। इधर आसिफ साहिब का रवैया अब सिर्फ बदल नहीं रहा था बल्कि निखर रहा था। वो पहले की तरह खामोश और बेबस नजर नहीं आते थे। वो अब खुद फैसले करने लगे थे, ऑर्डर लेने, सामान खरीदने, लोगों से बातचीत करने में उन्हें एक नया एतमाद महसूस होता। कभी कभी वो रख कर एम्बर को काम में मदद भी देते और यही छोटे छोटे लम्हात एम्बर के दिल में और ज्यादा मोहब्बत पैदा कर देते। वो सोचती कि यही वो दिन थे जिनका उन्होंने बरसों इंतजार किया था, जब इसका शौहर उसे सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि अपनी शरीके सफर समझकर साथ दे रहा हो। इसी दौरान मोहल्ले वालों ने भी आसिफ साहब के इस बदलते हुए हाल पर तवज्जो देनी शुरू कर दी। लोग एम्बर से तारीफ करते, कहते कि भाभी, आपके शौहर का खाना तो पूरे इलाके में मशहूर हो गया है। एम्बर मुस्कुराकर सबकी बातें सुनती, मगर इसके दिल में एक खामोश सी दुआ होती कि ये कामयाबी हमेशा कायम रहे। एक दिन शाम के वक्त बच्चे घर में बैठे आपस में बातें कर रहे थे। माहौल हल्का, खुशगवार और बेफिक्र था। बड़ी बेटी ने यूं ही पूछ लिया, उम्मी, क्या अब हम भी अबू की मदद कर सकते हैं? एम्बर ने नम आंखों से अपनी बेटी को देखा और आहिस्ता से कहा, हाँ बेटा, यही तो मैं चाहती हूं कि हम सब एक दूसरे का सहारा बने। आसिफ साहिब भी ये गुफ्तगू सुन रहे थे। उन्होंने अपनी बेटी के सर पर हाथ रखते हुए मोहब्बत से कहा, मुझे बहुत खुशी होगी अगर तुम लोग भी साथ दो।
मुझे अब तुम सबकी जरूरत है। इनकी आवाज में एक बाप के टूटे और दोबारा जुड़ते हुए दिल की सच्चाई छुपी हुई थी। घर में जैसे खुशियों की एक नई लहर दौड़ गई। बच्चे न सिर्फ अपने बाप के करीब आने लगे बल्कि उसकी कामयाबी को अपनी कामयाबी समझने लगे। वो शाम को आसिफ साहब से पूछते कि आज कितने ऑर्डर मिले, कौन सी डिश सबको ज्यादा पसंद आई, कब वो अपना छोटा सा रेस्तरां खोलेंगे। ये सब सुनकर आसिफ साहब की आंखें फख्र और मोहब्बत के मिलाप से भर जाते हैं। एक रात जब सब सो गए, आसिफ साहिब और इंबर छत पर बैठे हुआ खा रहे थे। आसमान साफ था, सितारे रोशन थे। आसिफ साहिब ने धीरे से कहा, अंबर, मैंने जिंदगी में बहुत गलतियां की, लेकिन अल्लाह ने तुम्हारे जरिए मुझे संभाल लिया। तुम न होते तो आज मैं कहीं का न रहता। इंबर ने उसकी तरफ देखा और नरम लहजे में कहा, हर इंसान गलती करता है आसिफ, लेकिन जो लोग अपनी गलतियों को मानकर बदल जाएं, अल्लाह भी उन पर रहम करता है। हम सब ने बहुत दुख देखे हैं, मगर अब वक्त बदल रहा है। मैं चाहती हूं कि हम ये नए दिन हमेशा महफूज रखें। आसिफ साहिब ने उसकी बात सुनकर सुर हलाया और दोनों खामोशी से सितारों को देखने लगे। गोया वो जानते हों कि उनकी जिंदगी में अब तारीकी नहीं बल्कि चांदनी ने जगह बना ली है। आसिफ साहिब और अंबर छत पर बैठे खामोशी से आसमान को देख रहे थे, जहां ठंडी हवा उनके चेहरों को छू रही थी। उसी खामोशी में अचानक नीचे के सहन से हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई दबे कदमों से चल रहा हो। अंबर ने चौंक कर नीचे झांका तो देखा कि महानूर हाथ में पानी की बोतल लिए आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आने की कोशिश कर रही थी। अम्मी, आप लोग यहाँ बैठे हैं, मैंने सोचा शायद आपको पानी चाहिए होगा, महानूर ने धीरे से कहा। अंबर मुस्कुराकर उसके करीब आए। नहीं बेटा, हम बस थोड़ी देर हुआ खा रहे थे, आ जाओ यहाँ बैठो। महानूर इन दोनों के दरमियान आकर बैठ गई। आसिफ साहिब ने उसे प्यार से देखा और कहा, तुम जाग क्यों रही हो, कल स्कूल नहीं जाना? महानूर ने हल्की सी हंसी के साथ जवाब दिया, अबू, जब से हमारे घर का माहौल बदला है ना, मुझे नींद ही नहीं आती। अच्छा लगता है सबको खुश देखकर। उसकी बात सुनकर अंबर की आंखें नम हो गईं और आसिफ साहब ने आहिस्ता से उसके सर पर हाथ फेर दिया। बेटा, हमारी खुशी तुम लोगों से है, तुम लोग खुश रहोगे तो हम भी रहेंगे। महानूर ने आसिफ साहब का हाथ पकड़कर कहा, अबू, क्या मैं भी आपके बिजनेस में आपकी मदद कर सकती हूँ? मैं हिसाब किताब में बहुत अच्छी हूँ, टीचर भी कहती हैं। आसिफ साहब ने हैरत और खुशी के मिले जले जज्बात से उसे देखा। सच? तो फिर कल से तुम मेरा सारा हिसाब लिखा करोगी। तुमने तो मेरी बड़ी मुश्किल आसान कर दी। नीचे सहन में अचानक एक और आवाज हुई। इस बार ईमान और इंबर का बेटा दोनों ऊपर आ रहे थे। जैसे सबको मालूम हो गया हो कि घर की फजा आज कुछ ज्यादा ही खूबसूरत है। ईमान ने आते ही कहा, अमित, कल मैं अपनी 2 सहेलियों को बताऊंगी कि मेरे अबू का खाना इतना मशहूर हो गया है कि लाइन लगी रहती है। बेटे ने भी फख्र से कहा, और अबू, मैं कल से आपके साथ मार्केट चलूंगा, सामान उठाने में मेरी ताकत काम आएगी। आसिफ साहिब का दिल भर आया। वो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि उनके वही बच्चे जो कभी इनसे दूर रहते थे, आज खुद चलकर उनके पास आ रहे हैं, उनके काम का हिस्सा बनने की ख्वाहिश कर रहे हैं। इंबर ने सबको करीब बिठाया और कहा, देखो बच्चों, ये सब अल्लाह का करम है, लेकिन इसमें तुम सबका किरदार भी होगा। अगर हम सब एक दूसरे का साथ दें तो हम और भी आगे बढ़ सकते हैं। ईमान ने हाँ में सिर हिलाया। अमी, मैं कल घर के पैकिंग बॉक्स डेकोरेट कर दूंगी, ताकि जब लोग खाना लें तो खूबसूरत पीकंग देख कर खुश हों। बेटे ने कहा, और मैं मेन्यू कार्ड बनाकर दे दूंगा। महानूर ने प्रजुष अंदाज में कहा, और मैं सारा हिसाब रखूंगी। आसिफ साहब ने सबको एक नजर देखा। उनके चेहरे पर ऐसा सुकून था जो बरसों बाद लौटा था। उन्होंने आहिस्ता से कहा, मुझे लगता है हमारा घर अब दोबारा एक खानदान बन गया है। वो खानदान जो पहले बिखर गया था, मगर अब अल्लाह ने उसे फिर से जोड़ दिया है। इंबर ने उनका हाथ थामा। हाँ आसिफ, अब न ये घर टूटेगा, न ये रिश्ते कमजोर होंगे। हम सब एक साथ हैं और यही हमारी असल ताकत है। रात की हवा में सुकून था। सितारे जैसे उनके ने सफर का गवाह बनकर चमक रहे थे। और छत पर बैठा ये खानदान अब सिर्फ घर नहीं था, एक मकमल कहानी था जो दोबारा मोहब्बत से लिखा जा रहा था। छत पर बैठा ये पुरस्कुन लम्हा अभी बाकी था कि अचानक आसमान पर हल्की सी ठंडी हवा का एक झोंका आया, जैसे कुदरत भी उस घर की नई खुशियों को सलाम कर रही हो। इंबर ने बच्चों को अंदर जाने का कहा, मगर वो सब जिद करने लगे।
कि आज सब एक साथ थोड़ी देर और बैठें। आसिफ साहब ने भी कहा, आज बच्चों की बात मान लेते हैं, ये लम्हे रोज रोज नहीं मिलते। इस बात पर सब हंस दिए और दोबारा गोल दायरे की सूरत में बैठ गए। ईमान ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, हमें आपको याद है हम पहले कभी यूं उठे बैठते भी नहीं थे, हर कोई अपने अपने कमरों में बंद रहता था। इम्बर ने आहिस्ता से सर हिलाया। हाँ बेटा, जब घर में टूट फूट आ जाए ना तो लोग एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, मगर अल्लाह का शुक्र है कि अब हमारा घर दोबारा आबाद हो रहा है। महानूर ने फख्र से कहा, अम्मी जब हमारे घर का बिजनेस और बड़ा हो जाएगा ना तो हम अपने अबू के नाम से एक बड़ा सा रेस्टोरेंट भी खोलेंगे। उसकी ये बात सुनकर आसिफ साहब ने बेअख्तियार हंसकर उसे गले लगा लिया। बेटा, अगर तुम लोग मेरे साथ हो तो इंशाअल्लाह बहुत कुछ मुमकिन है। नीचे से अंबर के फोन की घंटी बजी। वो थोड़ा परेशान हुई कि इतनी रात गए कौन फोन कर रहा है। जैसे ही उसने कॉल उठाई, दूसरी तरफ आवाज आई, भाभी आप लोगों के खाने की डिमांड कल एक बड़े दफ्तर में भी है। उन्होंने खास तौर पर कहा है कि कल का लंच आप ही की तरफ से हो। इम्बर ने हैरानी और खुशी से आसिफ साहब की तरफ देखा। आसिफ, ये तो बहुत बड़ी बात है, अल्लाह ने हमारी मेहनत वाकई कबूल कर ली है। आसिफ साहब ने गहरा सांस लिया, जैसे दिल से बोझ उतर रहा हो। अंबर, ये सब तुम्हारी वजह से है। अगर तुम उस दिन मेरा हौसला न बढ़ाते तो शायद मैं जिंदगी भर मायूसी में भटकता रहता। बच्चों ने तालियां बजाएं और सब एक नए जोश से भर गए। ईमान फौरन बोली, उम्मी कल मैं सुबह जल्दी उठ जाऊंगी ताकि सबके लंच पाकर सजा सकूं। बेटा बोला, और मैं अबू के साथ सामान लाने जाऊंगा। महानूर ने कहा, मैं हिसाब में पूरे ऑर्डर की लिस्ट बना लूंगी। घर में जैसे नई रोशनी उतर आई हो। ये सिर्फ कारोबार की कामयाबी नहीं थी, बल्कि एक बिखरे हुए घर का दोबारा जड़ जाना था। एक ऐसा घर जिसमें मोहब्बतें खामोश थीं मगर अब फिर से पहचान ली गई थीं। इसी दौरान आसिफ साहब ने बच्चों से कहा, कुल के बाद हम हफ्ते में एक दिन सब मिलकर घर से बाहर घूमने भी जाएंगे। जब इतनी मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ी खुशियां भी जरूरी हैं। बच्चे खुशी से उछल पड़े। जब सब आखिरकार अंदर आए तो घर का अंदरूनी माहौल भी पहले से ज्यादा रोशन लगने लगा। इम्बर ने एक नजर हर कमरे पर डाली, जैसे वो यकीन करना चाहती हो कि ये सब हकीकत है। और हकीकत यही थी कि बरसों के दुख छंट चुके थे। रात को बिस्तर पर लेटते वक्त आसिफ साहब ने इम्बर का हाथ थामा और धीमी आवाज में कहा, इम्बर, अगर जिंदगी ने हमें एक और मौके दिया है तो मैं वादा करता हूं कि अब कभी तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ूंगा। तुमने मेरा सहारा बनकर दिखाया है, अब बाकी जिंदगी में तुम्हारा सहारा बनूंगा। इम्बर की आंखों में शुक्रगुजारी छलक उठी। आसिफ बस यही चाहती थी कि घर खुशियों से भर जाए, और आज लग रहा है कि अल्लाह ने हमारी सारी दुआएं सुन ली हैं। यूं उस रात सिर्फ घर नहीं सोया था, इस रात बरसों के थके दिल सुकून से सोए थे, इस यकीन के साथ कि कल का सूरज इस खानदान के लिए मजीद रहमतें लेकर तुलवा होगा। अगली सुबह घर में एक नई ही चहल पहल थी। सहर के वक्त जैसे ही अंबर ने किचन का दरवाजा खोला तो इसे महसूस हुआ कि आज का दिन मामूल से ज्यादा बरकत वाला होगा। हल्की हल्की ठंडी हुआ खिड़की से अंदर आ रही थी और किचन में वही मनोज सी खुशबू बिखर रही थी, मेहनत, मोहब्बत और उम्मीद की खुशबू। इम्बर ने चौलाहा जलाया ही था कि महानूर नींद से भरे कदमों से मगर परजोश चेहरे के साथ किचन में दाखिल हुई। हो मैंने कहा था ना कि आज जल्दी उठूंगी। इम्बर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ बेटा, आज तो हम सबको मिलकर बहुत काम करना है। थोड़ी ही देर में ईमान भी आ गई, हाथ में रंग बिरंगे स्टिकर्स और रबन लिए हुए। अम्मी, मैं लंच बॉक्स खूबसूरती से सजा दूंगी, सबको मजा आएगा। उसका चेहरा फख्र से चमक रहा था। इधर आसिफ साहब कपड़े बदलकर तैयार खड़े थे। आज इनकी आंखों में वो हिम्मत थी जो कभी जिंदगी ने उनसे छीन ली थी। उन्होंने अंबर से कहा, मैं मार्केट से ताज़ा सामान ले आऊं? एम्बर ने सर हिलाते हुए कहा, हाँ आसिफ, आज ऑर्डर बड़ा है, कुछ भी कम नहीं होना चाहिए। बेटा भी साथ खड़ा था। अबू, मैं भी चलूंगा, आज मैं सारा वजन उठाऊंगा, आप थकेंगे नहीं। ये सुनकर आसिफ साहब के दिल में जैसे कोई नमी सी भर आई। उन्होंने प्यार से बेटे के सर पर हाथ फेरा। मेरा बेटा मेरा बाजू बन गया है। जब घर के मर्द सामान लेने चले गए तो एम्बर ने हाथ बांधे खड़ी होकर एक लम्हे के लिए पूरे किचन को देखा। उसने महसूस किया कि ये किचन अब सिर्फ उसकी जिम्मेदारी नहीं रहा, बल्कि पूरे घर का मरकज बन चुका है।
एक ऐसी जगह जहां से उम्मीद के दरवाजे खुलने लगे हैं। दोपहर तक घर में खाना पकने की खुशबू ने माहौल को एक त्योहार जैसा बना दिया। एम्बर के हाथों की महक, ईमान की तैयार की हुई सुजी हुई बॉक्सेस, महानूर की तरतीब दी हुई लिस्टें, सब मिलकर ऐसा लग रहे थे जैसे ये घर किसी बड़ी कामयाबी के दहाने पर खड़ा हो। जब आसिफ साहिब वापस आए तो गाड़ी सामान से भरी हुई थी। बच्चे भागकर उसे उतारने लगे। आसिफ साहिब ने अंबर से कहा, एम्बर, आज मैंने खुद लोगों को यह कहते सुना कि हमारे खाने की खुशबू दूर से पहचानी जाती है। मुझे लगा जैसे अल्लाह ने मेरे सीने में नए पर लगा दिए हूं। एम्बर ने मुस्कुराकर कहा, आसिफ, खुशबू तो हमेशा से थी, बस मान और हौसला कम था। अब दोनों वापस आ गए हैं। शाम तक ऑर्डर तैयार हो गया था। जब पैकिंग मकमल हुई तो सारे घर ने मिल कर वो बड़े दफ्तर में पहुंचाने का फैसला किया। रास्ते में बच्चों की खुशी दीदनी थी। हर बच्चा उस कामयाबी को अपनी कामयाबी समझ रहा था। दफ्तर में खाना पहुंचाते वक्त लोगों ने आसिफ साहब से ये कहते हुए हाथ मलाया कि आपके हाथ का खाना पूरे इलाके में नंबर 1 हो गया है। आसिफ साहिब की आंखें फख्र से भर गईं। वापसी पर गाड़ी में एक अजीब सा सुकून था, जैसे हर दिल में एक ही बात लिखती गई हो, ये घर अब टूटने वाला नहीं, ये रिश्ते अब बिखरने वाले नहीं, क्योंकि अब उस घर में मोहब्बत, मेहनत और एतिमाद ने मुस्तकिल बसीरा कर लिया है। घर पहुंचकर बच्चों ने थके मगर खुश कदमों से अंदर दाखिल होते हुए कहा, हमें अगला ऑर्डर कब आएगा? हमें फिर मिलकर काम करना है। एम्बर ने सबको अपनी बाहों में समेट लिया और आहुस्ता से कहा, आएगा, जरूर आएगा, क्योंकि अब हमारा घर सिर्फ घर नहीं, हम सबकी मेहनत से बना हुआ एक खानदान है। ये वो लम्हा था जब अंबर और आसिफ साहब को यकीन हो गया कि उनके घर में खुशियां अब चंद दिन की मेहमान नहीं बल्कि मुस्तकिल रहने आई हैं। घर में उस दिन की थिकन के बावजूद वो चमक मौजूद थी जो बरसों बाद किसी घर में लौटती है। जैसे हर दीवार, हर दरवाजा, हर कमरा ये गवाही दे रहा हो कि इस घर में अब सिर्फ कामयाबी नहीं बल्कि एक नई जिंदगी जन्म ले रही है। रात होते ही सब लोग अपने अपने कमरों में चले गए मगर आसिफ साहब और एम्बर के कदमों से लाउंज में बैठे ही रह गए। दोनों के चेहरों पर सुकून भी था, मुस्कुराहट भी, और एक ऐसा इत्मीनान जो बहुत कम लोगों के नसीब में होता है। आसिफ साहब ने आहिस्तगी से कहा, एम्बर, तुमने देखा आज सारे बच्चे किस तरह खुश थे। मैंने सोचा भी न था कि एक वक्त आएगा जब वो खुद चलकर मेरे करीब आएंगे। एम्बर ने धीमी मुस्कुराहट के साथ कहा, आसिफ, मोहब्बत कभी मर नहीं जाती, बस कुछ वक्त के लिए छिप जाती है। जब दिल साफ हो, नीयत अच्छी हो तो रिश्ते खुद वापस लौट आते हैं। और आज जो हुआ है ना, ये सिर्फ अल्लाह की खास मेहरबानी है। उनके दरमियान चंद लम्हों की खामोशी छा गई, वो खामोशी जिसमें हजारों जज्बात छिपे थे। एहसास शुक्र, एहसास मोहब्बत, एहसास मजबूरी और एहसास कामयाबी। फिर अंबर ने धीरे से कहा, आसिफ, मैं सोच रही थी क्यों ना हम अपने घर में एक छोटी सी जगह खास उस काम के लिए बना लें ताकि खाना पैक करना, सामान रखना और तैयारी ऑल एक जगह हो। इस तरह घर भी मुनज़्ज़म रहेगा और काम भी आसान हो जाएगा। आसिफ साहब ने फौरन सिर हिलाया, बिल्कुल ठीक कह रही हो, मैं कल ही कारीगर से बात करता हूँ। घर के स्टोर रूम को हम एक छोटी सी वर्क किचन की शक्ल देंगे। ये कोई मामूली काम नहीं है अंबर, ये अब हमारा मुस्तकबल है। उसी वक्त महानूर पानी का गिलास लेकर लाउंज में आए। मैं अबू, आप अभी तक सोए नहीं, मैंने सोचा शायद आपको पानी चाहिए होगा। आसिफ साहब ने उसे अपने पास बिठाया। बेटा, कभी कभी थकन भी अच्छी लगती है, आज की तरह, महानूर ने आहिस्ता से कहा। अबू, आज आपको इतना खुश देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे हमारा घर अब कभी उदास नहीं होगा। उसकी ये बात आसिफ साहब की रूह तक उतर गई। उन्होंने महानूर को गले लगाते हुए कहा, नहीं बेटा, अब ये घर उदास नहीं होगा क्योंकि अब हम सब एक साथ हैं। अगले दिन आसिफ साहब सुबह जल्दी उठकर कारीगर से मिले। जब वो वापस आए तो उनके चेहरे पर एक नई खुशी थी। एम्बर, कारीगर ने कहा है 3 दिन में सब तैयार हो जाएगा। अब हमारे पास अपना छोटा सा प्रोडक्शन किचन होगा। ये खबर सुनकर बच्चे भी दौड़ते हुए आए। ईमान बोली, हमें, मैं तो उस कमरे को खूबसूरत पोस्टर से सजा दूंगी। बेटा बोला, और मैं वहां चीजें रखने के लिए शेल्फ बना दूंगा। महानूर फौरन बोली, और मैं सारा हिसाब किताब नए रजिस्टर में बनाऊंगी। घर में एक बार फिर शोरगुल मच गया, लेकिन ये शोर लड़ाइयों का नहीं था। ये शोर एक नई कामयाबी, एक नए सफर और एक जुड़े हुए खानदान का था।
कमरा 3 दिन में तैयार हो गया। एम्बर ने जब वो कमरा देखा तो उसकी आंखों में नमी सी तैर गई। आसिफ, ये सिर्फ कमरा नहीं है, ये बरसों की मेहनत का फल है। आसिफ साहब ने आस्था से कहा, ही कमर, ये सिर्फ तुम्हारी हिम्मत का नतीजा है। तुमने मुझे गरने नहीं दिया। बच्चे तालियां बजाने लगे। अब तो हमारा बिजनेस पूरे शहर में मशहूर हो जाएगा। एम्बर ने सबको अपने करीब किया और कहा, हाँ होगा, इंशाअल्लाह होगा, मगर हम सबने मिलकर करना है। जैसे आज साथ हैं वैसे ही हमेशा रहना है। इस लम्हे घर में ऐसा सुकून, इतरा की दीवारें भी जैसे मुस्कुरा रही थीं। वो घर जो कभी टूट के किनारे पर आ गया था, आज मोहब्बत, बरकत और इत्तेहाद की पुनाह में। आसिफ साहिब ने जब उम्र की आंखों में वही पुरानी मोहब्बत, वही गैर मुतजलजल एअतिमाद देखा तो उनके दिल की सारी थकन जैसे लम्हों में उतर गई। वो आहिस्ता से उसके हाथ अपने हाथों में लेते हुए बोले, आंबर, मैंने तो हमेशा तुम्हें मजबूत समझा है, लेकिन आज तुमने मुझे ये भी सिखा दिया कि असल ताकत औरत की बर्दाश्त नहीं, उसका हौसला होता है। ले, मबर ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, हौसला हम औरतों को हालात नहीं देते, वो हमारे शोहरों के साथ का नतीजा होता है। आप साथ हूं तो कोई मुश्किल नहीं लगती। घर में अब जैसे बरसों बाद सुकून की फजा उतरने लगी थी। बच्चे भी जो कभी बाप से नाराज, दूर और बेइतबार बैठे रहते थे, अब हर वक्त आसिफ साहिब के उस पास घूमते नजर उठते। वो कभी कारोबार के मुताल्लिक सवाल पूछते, कभी खानदान की पुरानी बातें निकालते और कभी यूं ही बाप के पास बैठकर दिल हल्का करते। आसिफ साहिब के अंदर जो खालीपन था वो आहिस्ता आहिस्ता घर वालों की तौजह से भरने लगा। इधर अंबर का अपने काम में भी एअतिमाद बढ़ता जा रहा था। जैसे जैसे खाने के आर्डर बढ़ते वो हर डिश में मजीद लगने डालती। वह अपने कैंपलेक्स में छोटी छोटी लड़कियों को भी नौकरी पर रख कर रोजगार का जरिया बनने लगी। हर कोई उसे दुआएं देता कि उसने न सिर्फ अपना घर संभाला बल्कि दूसरों के घरों में भी खुशी की रोशनी भर दी। एक रोज जब वो रात देर तक काम में मसरूफ थी तो आसिफ साहिब चुपके से किचन में आए, उसका दुपट्टा ठीक किया और आहिस्ता से बोले, तुम मेरे साथ हो ना, बस ये एहसास ही मेरे लिए काफी है। मातम। मबर ने पलट कर उन्हें देखा। उसकी आंखों में नमी थी मगर चेहरे पर शांति। वो बोली, मैं तो वो हूं जिसने शादी के दिन से ये फैसला कर लिया था कि आप जहां जाएंगे मैं आपके साथ चलूंगी। अगर कभी लड़खड़ाएंगे तो मैं थाम लूंगी। इसी लम्हे दरवाजे से बच्चों की आवाज आई, आमी, अबू, देखें हमने आप दोनों के लिए क्या बनाया है। ईपीएस उस हाथ में छोटा सा पोस्टर लिए खड़े थे जिस पर रंगीन मार्कर से लिखा था, हमारी फैमिली, हमारा माँ और आप दोनों हमारी जान। आसिफ साहिब ने बच्चों को गोद में उठा लिया। एम्बर ने आंखों में भर आने वाले आंसू छुपाने की नाकाम कोशिश की और बरसों बाद उन्हें अपने घर में मुकम्मल होने का एहसास हुआ। जैसे जिंदगी ने एक लंबा चक्कर लगाकर उन्हें दोबारा वहीं लाम खड़ा किया हो जहां से सब कुछ खूबसूरत लगता है। एक दूसरे का साथ, इज्जत, मोहब्बत और खानदान की मजबूत डोर। इस रात जब सब बच्चे अपने कमरों में चले गए और घर में निस्बतन खामोशी फैल गई तो एम्बर और आसिफ साहिब लाना में रखे पुराने झूले पर आकर बैठ गए। आसमान पर धीमी रोशनी में चांद जैसे उनके बदलते हुए हालात का गवाह बन गया था। एम्बर ने आहिस्ता से झूला हलाया और धीमी आवाज में बोली, आपने कभी सोचा था कि हमारी जिंदगी यूं पलट जाएगी? आसिफ साहिब ने गहरी सांस ली, जैसे बरसों का बोझ अभी भी कहीं दिल के अंदर फंसा हुआ हो, और बोले, नहीं अंबर, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि एक दिन में खुद को फिर से काबिल महसूस करूंगा। मैं समझ चुका था कि मेरी जिंदगी अब उसी नाकामी के साए में गुजरेगी, लेकिन तुमने मुझे दोबारा जिंदा किया है। एम्बर ने सिर झुकाकर नरमी से कहा,
शौहरों को संभालना बीवियों की जिम्मेदारी नहीं होती, मगर जो औरत अपने शौहर को टूटने नहीं देती वही असल में घर की बुनियाद बनती है। मैंने सिर्फ वही किया जो मेरा फर्ज था। आसिफ साहब की आंखें नम हो गईं। वो अंबर के हाथ पर हाथ रखते हुए बोले, बॉस, तुमने फर्ज नहीं निभाया, तुमने मेरा मान रखा है। उसी लम्हे घर का दरवाजा खुला और बड़ी बेटी महनार नमोदार हुई। उसकी आंखों में कुछ परेशानी थी, मगर जब उसने अंबर और आसिफ को यूं एक साथ बैठे देखा तो उसके चेहरे पर सुकून सा उतर आया। वो आहिस्ता से पास आई और बोली, आमी, कल स्कूल में पेरेंट मीटिंग है, इस बार अबू चले ना? सब बच्चों के अबू आते हैं, मैं भी चाहती हूं कि मेरे अबू मेरे साथ हों। यह सुनकर आसिफ साहब चौंक गए। महीनों बाद उनके किसी बच्चे ने खुद उनसे ख्वाहिश की थी। ये उनके लिए जैसे किसी ने अंधेरे में चिराग जला दिया हो। वो बगैर सोचे फौरन बोले, हाँ बेटा, जरूर चलूंगा, मैं तो तुम्हारे लिए हर जगह हाजिर हूं। महनूर की आंखें चमक उठीं। वो खुशी से उनके गले लग गई। इंबर ने ये मंजर देखा तो उसके दिल में वो दुआ जागी जो शायद हर औरत अपने घर के दोबारा आबाद होने पर मांगती है, अमन, मोहब्बत और हमेशा का साथ। अगली सुबह नाश्ता की मेज पर माहौल पहले से बिल्कुल मुख्तलिफ था। बच्चे शोर कर रहे थे, हंस रहे थे और सब एक ही प्लेट में से चमच चमच खाने उठा रहे थे। हिमरी ने टोकने लगी तो आसिफ साहब ने हंसते हुए कहा, रहने दो अंबर, बच्चों का घर में यूं खुश रहना सिदका है। और अंबर ने पहली बार बरसों बाद अपने शोहर के चेहरे पर ऐसी हंसी देखी जो किसी दुख या बोझ से आजाद थी। इसी दौरान अंबर के फोन पर एक बड़ा आर्डर आया। एक कंपनी ने पूरे दो स्टाफ के लिए दोपहर के खाने का आर्डर दे दिया था। इंबर ने घबरा कर आसिफ की तरफ देखा, गोया वो पूछ रही हो कि ये सब संभाल पाएगी या नहीं। मगर आसिफ ने पुराइतमाद मुस्कुराहट के साथ कहा, डर किस बात का, हम साथ हैं तो कुछ भी मुश्किल नहीं। ये वो लम्हा था जो इंबर के दिल में हमेशा के लिए नक्श हो गया। शोहर का साथ, बच्चों की मोहब्बत और घर की रौनक, ये सब कुछ वापस आ चुका था। अगले दिन की रोशनी जैसे घर की हर दीवार में खुशी के रंग बिखेर रही थी। सुबह के वक्त अंबर पहले से ज्यादा जोश व वलवले के साथ उठ गई। उसने किचन में कदम रखा तो हर चीज खुद बहुत मुनज़्ज़म लग रही थी, जैसे कल की कामयाबी ने घर के माहौल में नया नज़्म कायम कर दिया हो। महानूर ने भी सुबह जल्दी उठकर आर्डर की लिस्ट तैयार की और बड़े शौक से एम्बर की मदद करने लगी। ईमान और बेटे ने भी छोटे छोटे काम अपने तौर पर संभाल लिए थे। ईमान ने आर्डर पैकिंग के बॉक्स सजाने का जिम्मा लिया और बेटे ने सामान की छानबीन की। आसिफ साहब ने बच्चों की ये सरगर्मी देखी तो दिल खुशी से भर गया। वो सोचने लगे कि कभी वो दिन भी आया था जब घर में खामोशी और खालीपन छाया रहता था, और अब वही बच्चे जो कभी अपने बाप से दूर रहते थे आज खुद आगे बढ़कर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने आहिस्ता से अंबर से कहा, अंबर, ये मंजर देखकर लगता है जैसे पूरा घर जिंदगी से भर गया हो। तुमने उस सब का सहरा खुद संभाला है। अंबर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हम सब ने मिलकर किया है आसिफ, मैंने सिर्फ रहनुमाई की है। अगर हम एक साथ हैं तो कोई काम नामुमकिन नहीं। उसके चेहरे पर सुकून और इत्मीनान दोनों झलक रहे थे। दोपहर तक घर के अंदर और बाहर सब सरगर्म थे। ऑर्डर तैयार हुए, पैकिंग मुकम्मल हुई और बच्चे खुशी से हर बॉक्स में छोटे नोट्स भी लगा रहे थे जिन पर लिखा था, हमारे हाथों से, हमारे दिल से, उम्मीद है आपको हमारा खाना पसंद आए। आसिफ साहब ने यह सब देखकर बच्चों को जमा किया और कहा, बेटो, ये छोटे छोटे काम दरअसल हमारी बड़ी कामयाबी की बुनियाद हैं। तुम सबने जो मेहनत और लगन दिखाई है वो हमारे घर को